हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 8 ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है और उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैग्नेटिक फ्लक्स of flux density 10 Tesla acts normal to 50 turn coil of 100 centimeter square area. The coil is removed from the field in 0.1 second. The induced EMF will be 5 volt, 40 volt, 50 volt and 25 volt. Question number 2. The induced EMF in a coil of 200 turns and cross-sectional area 0.2 meter square when magnetic field perpendicular to the plane of coil changes from 0.1 Weber per meter square to 0.5 Weber per meter square at a uniform rate over a period of 0.05 second will be 150 volt, 120 volt, 200 volt, 320 volt. Question number 3. The mutual inductance of a pair of coils is if current of 3 ampere in one coil causes the flux in second coil of 1000 turns to change by 10 to the power minus 4 Weber in each turn. 3H 3 Henry, 0.033 Henry, 333.3 Henry, 0.1 Henry. Question number 4. Three inductance of are connected as shown in the figure. The resultant inductance is 1.75 Henry, 3 by 7 Henry, 7 by 3 Henry, 1 Henry. इनके solution. Question number 1. A magnetic flux of flux density B Tesla acts normal to 50 turns coil of 100 centimeter square. The coil is removed from the field in 0.1 second. The induced EMF will be. एक मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड में कोयल रखी है। इसके नॉर्मली सपोज ये सर्कुलर कोयल है, इसकी टर्न्स हैं n इज इक्वल टू 50 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ दिस कोयल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर और 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डेंसिटी है 100 टेस्ला। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है कोयल तो मैग्नेटिक टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कोयल, सपोज दिस इज 5 उसकी वैल्यू होगी n b इंटू ए। n इज 50 टर्न्स, b 10 टेस्ला और एरिया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, दिस कम्स टू 5 वेबर। इसको कोयल को इससे रिमूव कर दिया गया है, इसको बाहर आगे कोयल
इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगी तो इसमें फ्लक्स फाई टू यहाँ पर विल बी एन B1 इंटू ए, और B जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस इज 0, तो n इंटू 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0. तो चेंज इन फ्लक्स फाई टू माइनस फाई वन इज इक्वल टू 0 माइनस फाइव वेबर. टाइम टेकन टू चेंज this flux 0.1 second, तो dt, this is d phi, dt is 0.1 second. Induced EMF E is minus d phi by dt minus phi by 0.1 50 volt. जो induced EMF होगा that will be 50 volt. C is correct option. Question number 2. The induced EMF in a coil of 200 turns and cross-sectional area 0.02 meter square when magnetic field perpendicular to the plane of the coil changes from 0.1 Weber per meter square to 0.5 Weber per meter square at a uniform rate of over a period of 0.05 second will be 150 volt, 120 volt, 200 volt and 320 volt. कोयल इसके टर्न्स हैं 200 और एरिया ऑफ द कोयल इज 0.2 मीटर स्क्वायर. ये फील्ड एक फील्ड में रखिए जो वेरिएबल है. तो इनिशियली जो फील्ड है दैट इज 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर और लास्ट में 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. फ्लक्स फाई एन बी ए और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी एन ए इंटू डी बी बाई डी टी. एन और ए कॉन्स्टेंट हैं. डी बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं तो डी बी एन इज 200 एरिया 0.2 डी बी 0 to 0.5 0.5 minus 0.1 और टाइम टेकन इज 0.5 सेकेंड 0.05 सेकेंड. टू 200 into 0.2 into 0.4 by 0.05. इनका डेसिमल 10 का 2 का डेसिमल 10 और 5 का डेसिमल 100. तो 100 से 100 क्रॉस हो गया. 200 into 2 into 4 by 5 40. d phi by dt is
320 और E इज जो मैग्नीट्यूड होता है E का d∅dt दैट इज 320 वोल्ट। जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसकी वैल्यू होगी 320 वोल्ट, 320 वोल्ट। D इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 3. The mutual inductance of a pair of coil is if current of 3 ampere in one coil causes the flux in second coil of 100 turns to change by 10 to the power minus 4 Weber in each turn. 3H, 0.03, 3H, 33.3H, 0.1H. जो फ्लक्स इन वन टर्न, change in flux 10 to the power minus 4 Weber, total change in flux 1000 turns n into 10 to the power minus 4 or 0.1 Weber. Phi is equal to Mi, mutual inductance into current, 0.1 Weber M into 3 ampere. M is equal to 0.1 by 3, 0.033 H हेनरी। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 0.033 हेनरी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4. The induced three inductance are connected as shown in the figure. The resultant inductance is 1.75H, 3/7H, 7/3H, 1H. Suppose this is L1, this is L2 and this is L3. L1 and L2 are in parallel. अगर इनका रिजल्टेंट L डैश है, मान लें इनको हम चेंज करके यहाँ से इनकी जगह पर हम L डैश पुट कर दें, L डैश। तो L डैश की वैल्यू होगी 1/L डैश इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। 1/0.5 प्लस 1/0.5, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, L डैश इज इक्वल टू 1/4, 0.25H, 0.25H, दिस इज 0.25H। अब अगर हम इनको रिमूव कर दें L1 और L2 पर, उसकी जगह पर L डैश पुट कर दें तो सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। L डैश एंड L3 आर इन सीरीज। अगर इनका रिजल्टेंट L है तो सीरीज का L इज इक्वल टू L3 प्लस L डैश इज इक्वल टू 0.75 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1.0 हेनरी। तो जो रिजल्टेंट इंडक्टेंस होगा वो होगा 1 हेनरी। डी इज करेक्ट ऑप्शन।